Hello all. Today we will be discussing monthly RBI circulars for the month of August 2024. I have already advised you that for GBO exams as well as upcoming CBO exams, RBI circulars play a very important role in all your preparation, which is actually for your professional knowledge section as well as current event sections. So, without any delay, we will be moving towards our discussion. This PDF has already been shared in Telegram group. Okay. The PDF has already been shared in Telegram group and you may get this PDF from there. Further, uh, further, not only for this PDF as well as MCQs based on RBI circulars has already been shared in the group. You may join the Telegram group as well as WhatsApp group. Okay, now we will be moving towards our discussion. If you want to know about me, here is a brief introduction about me. You may have a look over this. You'll find that the place Exam Zone 24/7 is completely competent with all your prep portals, and you may join this for your further preparation. Okay. Now, for MCQs, you need to pay, and for RBI circulars, the free compilation is free and freely available over the Telegram channel. The link is always in the channel description section. You may go there and join the Telegram group. Right. First is the prudential norms, the prudential treatment of bad loans and doubtful loans. Let me zoom it. जूम करते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे. This circular is for cooperative banks. Why the cooperative banks? क्योंकि cooperative banks अपने जो बैड डेट्स मीन्स एनपीए अकाउंट्स जो थे उनके इनकम को रॉन्गफुल तरीके से क्लासिफाई कर रहे थे. ओके, एंड इन दिस वे दे वर यूजिंग इट, दिस रिजर्व इनटू देयर assets. So that's why RBI came forward and issued a guidelines. The guideline you see is what? With effect from financial year 24/25. Okay, 24/25 is already running. Okay, this year is 24/25. All provisions as per income recognition asset classification, whether accounted for BDDR. This is important term, BDDR. Okay, this term we will be covering in MCQ section just after this. Shall be charged an expense to PL and account. ओके, आरबीआई ने ये बताया है कि जो भी बैड डेट रिजर्व है उनका BDDR, ओके, वो P&L अकाउंट में रिकॉग्नाइज होगा. मींस अगर बैड डेट रिजर्व्स इनको बढ़ाना है तो इनको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और BDDR को क्रेडिट करना पड़ेगा. वी विल गो थ्रू एन एग्जाम्पल ओवर दिस क्लासिफिकेशन. हम इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. ये BDDR क्या है और आरबीआई ने क्यों इशू किया. होप इट इज विजिबल clearly. This is the point. This is the point we are discussing, the point number A.
आरबीआई ने बोला है 24-25 से ऑल प्रोविजंस एज पर इनकम रिकॉग्निशन, मतलब इन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, इसको आईआरएसी नाम भी बोलते हैं, आईरैक नाम्स, आईआरएसी, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, ओके, whether accounted for under the head BDDR or any other head of the account shall be charged as expense to P&L account। मतलब अगर आप एनपीए के लिए कोई प्रोविजनिंग करते हो तो बीडीडीआर में जो रखते हो, डेट रिजर्व में रख रहे हो, बैड डेट रिजर्व में जो रख रहे हो, वो चार्ज होगा पी एंड एल अकाउंट से, ओके। अगर इफ यू रिमाइंड सर्कुलर, एक ऐसा सर्कुलर सितंबर 2023 में आया था जिसमें आप सिक्योरिटीज को जो नोशनल प्रॉफिट एंड लॉस है वो पी एंड एल अकाउंट को डायरेक्ट हिट करके आपको क्लासिफाई करना है। दिस इज समवट सिमिलर, बट इसका क्लासिफिकेशन आईरैक नॉर्म से है तो इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोविजंस regulatory purpose shall be continue to be defined as extant guidelines on capital adequacy, okay। कैपिटल एडिक्वेसी मीन्स बाकी जो गाइडलाइंस है वो कैपिटल एडिक्वेसी नाम्स जो भी हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स पे लगेंगे। आफ्टर चार्जिंग ऑल एप्लीकेबल प्रोविजंस एज पर आईआरएसी नॉर्म्स other extent regulation to the P&L accounts, bank may make any appropriate net profits below the line to BDDR if required as per applicable status or otherwise, okay, as per applicable statute मीन्स जो भी अप्लीकेबल प्रोविजंस हैं वो आईआरएसी नाम्स और अदर एक्सटेंड गाइडलाइन से बैंक में अप्रोप्रिएट ऑफ नेट प्रॉफिट बिलो द लाइन टू बीडीडीआर, मीन्स जो भी डेट रिजर्व में ये पैसा रख रहा है वो बिलो द लाइन टू बीडीडीआर, मतलब अगर बैड डेट रिजर्व रेशियो से भी नीचे आना है, इसको एक बैड डेट रेशियो रिजर्व जो कोऑपरेटिव बैंक्स ने बनाया है उससे अगर इसको नीचे आना है देन आल्सो इट विल बी अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, अपने नेट प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। मींस अगर नेट प्रॉफिट इसका 25 करोड़ है और बीडीडीआर में रिजर्व को अगर लाइन से नीचे है और 5 करोड़ और डालना है तो ये केवल अकाउंटिंग टर्म्स नहीं होगा, 5 करोड़ इसके पीएनडल को हिट करना पड़ेगा। मींस अभी नेट प्रॉफिट 25 से घट के 20 करोड़ ही रह जाएगा। नाउ एज अ वन टाइम मेजर विद व्यू टू फैसिलिटेट रेक्टिफिकेशन है स्मूथर ट्रांजेक्शन, मींस जो भी नई गाइडलाइन है वो आराम से इम्प्लीमेंट हो जाए इसके लिए रेगुलेटरी रिलैक्सेशन कुछ मिला हुआ है। कैसा? banks may have created provisions required as per IRAC norms by appropriating them net profit rather than recognizing same as expense। मतलब वो उसको ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस में जो दिखा रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो दिखा रहे हैं वो अभी नहीं कर सकते, वो इनको सेम एज एन, ठीक है, नेट प्रॉफिट रेदर देन रिकॉग्नाइज सेम एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। अप्रोप्रिएटिंग देम फ्रॉम नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट 25 करोड़ है देन आफ्टर दैट नेट प्रॉफिट निकालने के बाद इनको बीडीडीआर के लिए पी एंड एल अकाउंट में हिट करना है, मींस दैट अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम 25 करोड़। सी इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज बीडीडीआर, वो हम अभी कवर करेंगे आगे एमसीक्यू सेक्शन में, ओके। फर्दर New circular is modified interest subvention scheme for short-term loans for agriculture and allied activities through KCC during financial year 24-25। This is very important circular। ये बहुत ही important circular है, स्पेशली जीबीओ में तो पूछा ही जाएगा, सीबीओ में इसका पूछा जाना श्योर है अपकमिंग सीबीओ एग्जाम के लिए। दिस इज द one of the most probable circular which may appear in exam before you।
देखो मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भी है, तो ये सर्कुलर आपको पढ़ना है। कोऑपरेटिव बैंक्स का सर्कुलर आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मीन्स इससे पहले वाला जो सर्कुलर है, इट इज अप टू यू वेदर यू स्टडी इट और नॉट, बट दिस इज द सर्कुलर विच यू नीड टू स्टडी एंड नीड टू फोकस। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स और लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन्स क्या होते हैं, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा। बिफोर नोइंग दैट, अगर पूरी सीजन, मतलब जब फसल खेत में लगाते हैं, व्हेन यू सो द सीड्स फार्मर टिल द हार्वेस्टिंग इज completed, that is called crop cycle. If it is less than a year, less than 1 year, it is called the short term crop. If it is more than 1 year, it is called long term or long duration crop. Okay, term and duration are the same thing. Now, where it will be available, up to an overall limit of 3 lakhs to farmer through KCC at concessional interest rate during 24-25. ओके, मीन्स, अच्छा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन इंटरव्यू दैट व्हाट इज द पर्पज ऑफ केसीसी। केसीसी किस लिए होता है? केसीसी इनिशियली इट वाज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, बट केसीसी नाउ can be given for ancillary service, means allied activities including animal husbandry, मतलब आप पशुपालन कर सकते हो, डेयरी दूध का कोई काम कर सकते हो, रेयरिंग, ओके, बी कीपिंग, ओके, तो ये फिशरीज, मछली के पालन के लिए, इन सब लोन्स को भी केसीसी के थ्रू दिया जा सकता है। तो अगर इंटरव्यू में पूछता है कि आप केसीसी किसको दोगे, ये फसल प्रोडक्शन के लिए दोगे या एनिमल रियरिंग के लिए दे दोगे, तो आपको बोलना है यस, इनिशियली व्हेन केसीसी वाज लॉन्च्ड इट वाज बेसिकली एम्ड एट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पहले था जब केसीसी लॉन्च हुआ था। उसके बाद क्या है, आफ्टर दैट, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू, आप एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी दे सकते हो, डेयरी, फिश, बी कीपिंग, एनीथिंग if it is related to agriculture, then up to overall limit of 3 lakhs, means 3 lakhs tak, okay, 3 lakhs. See, you can also give more than 3 lakhs, but interest subvention, will not be, मीन इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये होता है कि आपको बैंक जितने रेट पे लोन दे रहा है उसमें कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सपोज बैंक हैज गिवन यू 8% and then government is giving discount as a 2%, then your effective interest rate will be 6%. This is for example. Okay, suppose bank is giving at 7%, and what is subvention, suppose 3% is given by, is being given by uh, government, then your effective interest will go to 4%. This is just to encourage the product crop production, animal husbandry and others. Further, this is also as an assistance to farmers so that they are not subjected to high interest rate charged by the banks. Okay, चलो आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि केसीसी किसी भी चीज के लिए दे सकते हैं, वो क्रॉप लोन तक ही लिमिटेड नहीं है। सेकंड क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन केवल 3 लाख तक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाउ मच अमाउंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इज अवेलेबल, दिस इज अप टू 3 lakhs. ओके, सी, फर्दर, this is not related
to small farmer or marginal farmer or corporate farmer. This is just related to amount which is being sanctioned, being given by the bank. So नाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो लोन देते हैं वो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में ही दे सकते हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स गिवन बाय रूरल एंड सेमी अर्बन, मतलब चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, पीएसबीज और प्राइवेट सेक्टर, ये इंटरेस्ट सबवेंशन केवल रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस में मिल, सिटी की ब्रांचेस में इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा. ओके, तो अगर आप अपने बैंक को बचाना चाहते हो, सोचते हो कि बैंक को हमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिले, तो आप अपने सिटी की ब्रांच का लोन किसी रूरल ब्रांच में ट्रांसफर कर दो, इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा. ठीक. स्मॉल फाइनेंस बैंक, एग्रीकल्चर, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी विद सीडेड विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, मतलब जो सोसाइटी है वो किसी एक बैंक के साथ अटैच है, बैंक उसको लोन देता है, वो अपने मेंबर्स को वो पैसे बांटती है. आफ्टर दैट मेंबर्स डिपॉजिट टू पीएससीएस एंड दिस डिपॉजिट टू बैंक. ओके, तो जो भी इंटरेस्ट सबवेंशन होगा वो पीएससीएस के थ्रू मिलेगा. This interest subvention will be calculated on the loan amount from the date of disbursement up to the date of actual repayment of loan by the farmer up to the due date of the loan fixed by the banks. Okay, ये कब तक रहेगा? जब आपका जो है डिसबर्समेंट हुआ और जब रिपेमेंट हुआ, इसके बीच में जो ड्यूरेशन है दैट विल बी एलिजिबल. इसके बीच में जो ड्यूरेशन है उस पे ही इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा. लेंडिंग रेट टू फार्मर, it is 7%. Rate of interest subvention is 1.5% to lending institutions. Okay, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन किसको मिल रहा है? ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब ये बैंक को मिल रहा है, फार्मर को नहीं मिल रहा है. फार्मर को अगर 7% पे ये देते हैं बैंक्स, then the government will give 1.5% extra, means the effective rate will be 8.5% for bank earning. बैंक के अर्निंग के लिए 8.5% होगा. एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम विल बी प्रोवाइडेड टू सच दोज फार्मर्स रिपेइंग इन टाइम. ओके, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं, ये आपको जानने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. This is the important thing you need to understand this point. Okay, see this point. Here is bank, government is saying that if bank gives at 7%, means 7% के रेट पे बैंक ने फार्मर को दिया. बैंक, here is the farmer, this is the farmer. Okay, see, let him make some smart. Okay, तो बैंक अगर फार्मर को 7% पे देगा तो बैंक को कितना पैसे मिलेंगे? अगर मान लो बैंक ने 100 रुपए का इसको लोन दिया 7% पे, तो 7 रुपीज तो 1 ईयर में मिलेंगे ही. 1 ईयर मतलब जब से उसने दिया, और प्लस 1.5% ऑफ दिस, मतलब 1 रुपीज 5 पैसे, इट विल बी 8.5%. ये हो गया बैंक्स अर्निंग. ये 7% फार्मर देगा बैंक को, क्योंकि 7% इट विल बी गिवन बाय द फार्मर, क्योंकि फार्मर ने 7% का लोन लिया हुआ है 7% पे, और 1.5% ये गवर्नमेंट देगी बैंक को. ठीक है, तो जो बैंक केसीसी दे रहा है, जो भी बैंक केसीसी दे रहा है वो 7% वो फार्मर देगा, एंड 1.5% ये गवर्नमेंट देगी किसको? बैंक को. इट विल बी गिवन द बैंक. नाउ अभी फार्मर के साथ क्या होगा? उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा इफेक्टिव? उसको तो बैंक ने 7% पे दिया हुआ है, फार्मर को बैंक ने 7% इंटरेस्ट रेट पे दिया है. सी, फार्मर को बैंक ने कितने परसेंट पे दिया है? 7% पे, मतलब फार्मर बैंक को 7 रुपीज देगा. बट here it is given 3% per annum will be provided to farmers on
रीपेइंग इन टाइम, मतलब अगर 1 ईयर के लिए केसीसी है और आप 1 ईयर में ही पेमेंट कर रहे हो विद इन 1 ईयर, तो 3% मतलब 3 रुपीज आपको गवर्नमेंट देगी, किसको? फार्मर को। तो अभी देखो, 7 रुपए फार्मर ने दिया बैंक को और 3 रुपए वो फार्मर गवर्नमेंट से पा गया। इसको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट पड़ा 4%, माइनस इसलिए लिखा है कि ये फार्मर के पास से पैसे जा रहे हैं। ठीक है। इफेक्टिव इंटरेस्ट विल बी 4% पर एनम ऑन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। ओके, 4% पर एनम मिलेगा। ठीक है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डिसबर्समेंट, मतलब 1 ईयर तक के लिए ही मिलेगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं मिलेगा। यस, रिन्यूअल के बाद नया लेता है अगर, तो दैट विल बी द डिफरेंट केस, एंड उस पे भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, बट विद इन 1 ईयर, 1 ईयर में उसको पूरा रिन्यूअल पूरा करना है। ठीक है। Interest subvention, prompt repayment incentive benefit on short-term crop loans and short-term loans allied activities will be available up to overall limit of 3 lakhs per annum, subject to a maximum sub-limit of 2 lakhs per farmer in respect of those farmers involved only in activities related to animal husbandry, fisheries, beekeeping. Okay. ये कह रहा है इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, मतलब जो भी गवर्नमेंट 3% फार्मर को दे रही है, ओके, वो 3 लाख के लोन के लिए ही है ऐसा, मतलब 3 लाख से ऊपर का लोन है तो नो सबवेंशन, गवर्नमेंट उस केसीसी में कोई भी इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं देगी। अगर 3 लाख पर इनम है, इंक्लूडिंग ए सब लिमिट ऑफ 2 lakhs per farmer in respect of those farmers involved only in activities related to animal husbandry, dairy, fisheries, beekeeping. The limit for crop loan component will take priority for interest subvention and prompt repayment incentive benefits, and residual amount will be considered towards allied activities including animal husbandry, dairy, fisheries. ठीक है। मतलब चलो, अगर किसी फार्मर का स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से केवल 1 लाख का लोन है, तो 1 लाख प्लस 2 लाख फॉर अदर्स, मैक्सिमम लिमिट बोल रहा हूं, इतना ही दे सकते हो, इतना ही होगा। अगर कोई फार्मर 3 लाख का क्रॉप लोन लिया प्लस अदर कोई लिया, तो केवल क्रॉप लोन पे मिलेगा और अदर पे कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ओके, इसका कहने का मतलब ये है। सब लिमिट मतलब केसीसी के अलावा अगर कोई भी लिमिट लेता है एनिमल रेयरिंग और उसके लिए 2 लाख पर फार्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज फार्मर्स जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज इन सब के लिए काम कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू डिस्करेज डिस्ट्रेस सेल, मतलब जब फसल पैदा हुई, फार्मर को जरूरत है तो वो कम दाम पे भी बेच लेता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। तो डिस्ट्रेस सेल, कभी कभी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, अगर वो नहीं स्टोर करेगा सही जगह पे तो भी उसका वो जो क्रॉप प्रोड्यूस है, क्रॉप प्रोड्यूस जो उसके पास है वो भी खराब हो जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर केसीसी विल बी अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, ओके, फॉर ए पीरियड अप टू 6 months एंड पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, मतलब अगर देखो, इसका मैकेनिज्म समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या होता है, बैंक देता है केसीसी, उससे होता है क्रॉप प्रोडक्शन, उसके बाद होता है सेल, ओके, उसके बाद होता है रीपेमेंट। अब अगर जब क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, उस समय सब लोगों की क्रॉप में प्रोडक्शन हो रहा है तो प्राइस नीचे जाएगा। अगर उस समय वो सेल करेगा तो हो सकता है कि उसको
कम पैसे मिले और वो केवल रीपेमेंट ही कर पाए, उसके पास अपने खर्चे के लिए कोई पैसे एक्स्ट्रा पैसे बचने चाहिए ना। और दिस इज आल्सो पॉसिबल दैट द farmer is not able to sell the crop under on account of which he is able to make the repayment to the bank। तो इस वजह से कि हमें रिपेमेंट करना है, इस वजह से वो जल्दी में ना सेल करे, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो स्टोरेज में रख सकता है। ओके, और 6 मंथ तक। इसका मतलब उसको 1 ईयर प्लस 6 मंथ और इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। मतलब जो 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो अभी 1.5 ईयर के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन फार्मर को मिल जाएगा। ये किसके लिए है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए है। फर्दर क्या है? टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर्स अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। मतलब अगर बारिश हो गई, तूफान आ गया, ठीक है, इस तरह के कुछ होता है और उसमें जो है फसल खराब हो जाती है, देन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन द रिस्ट्रक्चर्ड लोन अमाउंट। ठीक है, चलो 100 रुपीज का केसीसी थी, क्रॉप क्रॉप खराब हो गई, वो 50 रुपए ही भर पाया, तो 50 रुपए का रिस्ट्रक्चरिंग करेगा बैंक, मतलब एक तरह से इसको फ्रेश लोन मानेगा और इस पे भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज आल्सो सेम थिंग दैट रीपेमेंट इंसेंटिव ऑफ 3% पर एनम। ये याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बैंक को कितना इंसेंटिव मिलता है, तो बैंक को 1.5% मिलता है। फार्मर को कितना मिलता है? 3% मिलता है इंसेंटिव। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? जो परसेंटेज है उसी के आगे लाख लगा दो, 3 लाख तक मैक्सिमम लिमिट है जिसपे आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग न्यू सर्कुलर इज देयर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, मतलब जो भी आप लोन लेते हो वो किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को, बैंक। ये कब से अप्लीकेबल है? द अप्लीकेबल, इट विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम जनवरी 2025। जनवरी 2025 से अवेलेबल होगा, अप्लीकेबल होगा ये सर्कुलर। ठीक है, ये कह रहा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, okay, and credit information institutions shall keep the credit information collected and maintained by them updated regularly on a fortnightly basis as on 15th and last day of respective months, or such as shorter intervals on mutually agreed between credit information institutions and credit information companies. The fortnightly submission of credit information by credit institution to CIC shall be ensured within 7 calendar days of relevant reporting fortnight. Okay. CIC shall provide a list which are not adhering fortnightly data submission timelines, department supervision, RBI. Okay. Central office at half yearly intervals on 31 and September 30th each year for information and monitoring purposes. सी, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और दूसरा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जो जनरली आप सिबिल स्कोर देते हो तो वो क्रेडिट रिपोर्ट आपकी प्रोवाइड करती हैं। और देखो, एक होता है बैंक, ये चलो ये बैंक है, ये बंदा है, और यहाँ पर ये कंप्यूटर में सिबिल स्कोर निकालने वाला फाइल। क्या होता है जब ये बंदा इससे लोन लेता है, व्हेन दिस पर्सन टेक्स ए लोन फ्रॉम दिस बैंक, बैंक गिव्स द इंफॉर्मेशन टू दिस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ओके, दैट such and such so and so person
टेकन लोन फ्रॉम दिस अमाउंट दिस एंड पेइंग ऑन दिस। तो अब ये क्या है, ये अपडेट कब कब करना है इनको, हो सकता है वो लोन बंद हो जाए, हो सकता है वो लोन खराब हो, तो अपडेटेड रेगुलरली ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस, मतलब ऑन 15th एंड लास्ट, हर महीने की 15th और लास्ट डे को अपडेट करना है इनको इंफॉर्मेशन। ओके। और शॉर्टर इंटरवल, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 15th को, हो सकता है कि आप अगर कम 1 वीक में कर पाओ तो आप 1 वीक में उसका अपडेट देते रहो, कि अगर किसी के रीपेमेंट में डिफॉल्ट हुआ या उसने रीपेमेंट कर दिया, ठीक है। देन credit information shall provide a list of credit information institutions which are not adhering to the fortnight data। अगर कोई भी बैंक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को फोर्टनाइट बेसिस पे रिपोर्ट नहीं करता है तो सीआईसी आरबीआई को रिपोर्ट करेगा। ओके। और हाफ ईयरली बेसिस। ठीक। नाउ इसको थोड़ा 2 लाइन में समझते हैं, शॉर्टर टर्म्स में, वो अच्छा होगा। ठीक। बैंक लोन की इंफॉर्मेशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को देगा। कब देगा? फोर्टनाइटली और शॉर्टर, मतलब या तो 15 दिन में एक बार दे दे, और लेस देन 15 डेज। ओके। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी बताएगी कि इस बैंक ने मुझे 15 डेज में कोई अपडेट नहीं दिया, और वो ये रिपोर्ट करेगी आरबीआई को, आरबीआई उस पर फाइन लगाएगा या जो कुछ करना है करेगा। इस पूरे सर्कुलर का यही मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि द डेटा is updated by credit information companies on which basis it is fortnightly or less, ऑप्शन में रहेगा। तो वही सही है, अगर फोर्टनाइटली भी लिखा है देन आल्सो इट इज गुड, बट कभी भी फोर्टनाइटली और मोर ये नहीं लिखा रहेगा। नाउ रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन अप्लीकेबल टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। मतलब ये कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो रेगुलेशन है वो क्या है। इससे पहले क्या है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टिल नाउ डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन 30% लिक्विड असेट अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट। देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जो पब्लिक डिपॉजिट लेती हैं, मतलब दूसरी होती हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग। वो क्या करती हैं, बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाया, मार्केट से पैसा उठा के लोन दे दिया। ठीक है। जैसे कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, चलो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, अब या तो इसको इसकी पेरेंट कंपनी पैसा दे, या ये मार्केट से उठाएगी, या ये पब्लिक से पैसा मांगेगी। क्यों? क्योंकि इसको लोन देना है घर बनवाने वालों को, जो भी हाउसिंग लेना चाहते हैं लोन, तो ये तीनों जगह से ये पैसे उठा सकती है। ओके। लेकिन अगर डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो उसमें क्या है, 30% लिक्विड असेट अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट, मतलब अगर 100 रुपए का इसने पब्लिक डिपॉजिट लिया तो 13 रुपए या कैश और इक्विवेलेंट में एज रिजर्व हमेशा रखने पड़ेंगे इसको, ये आरबीआई की गाइडलाइन है। ओके। Earlier, housing finance companies regulated by NHB. Since the transfer of regulation of HFC from National Housing Bank to Reserve Bank with effect from August 9, 2019, RBI is issuing the guidelines for housing finance companies। देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ये दिस इज वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। वो बोलेगा हु रेगुलेट्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नाउ। ठीक है। तो पहले क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक करता था, लेकिन अगस्त 9 2019 से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। ओके। तो आपको डालना है आरबीआई,
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा रेगुलेशन वाला। ठीक है, सी all deposit taking housing companies shall maintain ongoing way to the 15%। चलो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट किस तरह से पूछा जाएगा इस सर्कुलर पे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज are required to maintain ongoing basis the liquid assets to the extent of 13%, 15%, 20%, 6.5%। ओके, तो देन इट इज 15%। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि 13% था, जो बढ़ा करके आरबीआई ने 15% कर दिया है। मतलब अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 100 रुपए का पब्लिक डिपॉजिट लेती है तो 15 रुपए उसको रिजर्व में रखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब एज ए लिक्विड एसेट, या तो कैश में रख ले या किसी कैश के इक्विवेलेंट फॉर्म में रख ले या गोल्ड में ही रख ले। ठीक है, एंड इट इज 85 आल्सो। 85 क्या, अब 85 बच गया फॉर लोन, इसके अगेंस्ट लोन दे सकता है। ये 15 रुपए इसको रिजर्व में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाना है पूरा 15%? जनवरी जुलाई 1 2025 तक ये अचीव कर लेना है इनको। ओके, ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ये टोटल लिक्विड एसेट्स बोल रहा है। मतलब सिक्योरिटीज की फॉर्म में 10% ही रख सकते हो। सिक्योरिटीज आर आल्सो कैश इक्विवेलेंट्स बट नॉट एज लिक्विड एज कैश। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, ये पूछ सकता है टाइनी डिपॉजिट्स क्या होती हैं। टाइनी डिपॉजिट्स वो होती हैं जिनका डिपॉजिट 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो। दीज आर कॉल्ड, ये देखो यहाँ पर है टाइनी डिपॉजिट्स। अगर एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइनी डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1,000, 10,000, 20,000, 100,000, दिस इज द 10,000। और लेस देन 10,000 मतलब 2,000 वाला भी टाइनी डिपॉजिट है, 3,000 वाला भी, 5,000 वाला भी। ओके, नॉट एक्सीडिंग 10,000 मतलब 10,000 वाला भी है, 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ अदर पब्लिक डिपॉजिट्स not more than 50% of the amount of the principal sum of deposit 5 lakhs which is lower may be prematurely paid to individual depositors। मतलब अगर 5 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट है, 5 लाख से ज्यादा, मतलब 5 लाख तक तो प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है सर्कुलर के हिसाब से, प्री मैच्योर क्लोजर। बट अगर 5 लाख से ज्यादा का है पब्लिक डिपॉजिट, देन प्री मैच्योर क्लोजर इज नॉट अलाउड विदाउट पेनाल्टी, मतलब फाइन। अगर आप 5 लाख से ऊपर का डिपॉजिट क्लोज करते हो तो आपको बैंक फाइन लगा सकता है, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विच आर टेकिंग द डिपॉजिट्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, दिस इज नॉट important and you may leave this circular। okay, for the processing of e-mandates for recurring transactions, देखो अंडर द ई मैंडेट फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब दैट इश्यूअर सेल सेंड ए प्री डेबिट। देखो अगर आपने कहीं पर कोई ऑनलाइन चाहे आप मिल्क या कुछ भी ऑर्डर करते हो तो आपके पास कल अगर पैसे डेबिट होने हैं, ठीक है, डेबिट होना है, ऑटो डेबिट, या आपने मान लो कोई मूवी नेटफ्लिक्स हॉटस्टार इसका सब्सक्रिप्शन लिया है मंथली, तो डेबिट होने से पहले आपको एट लीस्ट 24 आवर्स प्रियर, जब भी डेबिट होगा उससे 24 आवर्स से पहले आपके पास मैसेज आएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में 5,000 या 2,000 या 3,000 रुपए डेबिट होने हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने उस अकाउंट में पैसा भेज करके उसमें बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, इंक्लूजन ऑफ यूबीएस एजी इन द सेकंड शेड्यूल, मतलब यूबीएस एजी बैंक जो है सेकंड शेड्यूल में गया तो ये शेड्यूल्ड बैंक हो गया है।
ठीक है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट ऑफ रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसमें बस ये पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, पहले ये जान लेते हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम क्या होती है। सिंपल रफ वर्ड्स में जानेंगे, वेरी सिंपल वर्ड्स में जान लेते हैं कि ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम क्या होती है। देखो वो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन क्या होती है, इंटरेस्ट को इक्वलाइज करना। मतलब चलो मान लो चाइना में कोई एक्सपोर्टर है, उसके पास 5% रेट पे पैसा अवेलेबल है, और यहाँ का एक्सपोर्टर है उसको से 6% पे मिल रहा है, तो ये 1% इसको ज्यादा लग रहा है, इससे इसका एक्सपोर्टिंग जो कैपेसिटी है, जो मतलब उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वो कॉस्टली है। इस तरह के इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट उसको 1% की सब्सिडी दे सकती है। जरूरी नहीं है कि ये केवल डिफरेंस ही हो सकता है कि चाइना में 3% हो, यहाँ पर 8% हो, और गवर्नमेंट की सब्सिडी केवल 2% हो। ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इन सबको एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए जो इंसेंटिव इस तरह से मिलता है इंटरेस्ट के लिए, वो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में आता है। शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, ओके, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट इन rupees. Further, the scheme up to 31st अगस्त 2024, मतलब इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम अगस्त 31st 2024, मतलब अभी वो स्कीम खत्म हो चुकी है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट जनरली एक्सटेंड्स इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, ओके। नाउ स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स इन द इंटरनेशनल IFSCs इंडिया, मतलब सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स, मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स आप बोल सकते हो, या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इन्वायरमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, वो अभी आप IFSC में बॉन्ड्स इशू करके और वहां से पैसा ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, बॉन्ड्स क्या है, इशू कैसे होता है, मसाला बॉन्ड क्या है, ये सब क्या है, ये सब चीजें हमने बॉन्ड वाले लेक्चर में कवर करी हैं, तो फिर यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप जाके वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। नाउ now we will be going through, this is the circular is in this is the last one, what is the bond and कूपन पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट होता है वो कूपन होता है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम इशू होता है तो कहाँ पे इशू होता है, प्राइमरी मार्केट, फिर ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में, तो ये सब चीजें हमने बॉन्ड्स वाले में कवर कर रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हो, इस सर्कुलर को पढ़ सकते हो। इसके बाद जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर आई विल बी डूइंग अ वीडियो ऑन MCQ ऑन सर्कुलर्स, ओके, फॉर द अगस्त, आप उसको देख के और अपनी प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।